Welcome back everyone. So now we are going to solve the next question of trigonometry. Next question is question number 11. Okay, question number 11. Question is like this. This question number 11 from RS. Question is like this. If tan theta is equals to 20 by 21. Okay. Find the value of or show that 1 plus sine theta 1 minus sine theta plus cos theta upon 1 plus sine theta plus cos theta is equals to 3 by 7. So this is the question. So tan theta is equals to 20 by 21. Show that 1 minus sine theta plus cos theta upon 1 plus sine theta plus cos theta is equals to 3 by 7. So we have to solve this question. अपना अप्रोच क्या होगा यहाँ पे? What will be our approach? So again same approach. ठीक है. So what is given to us? Tan theta is equals to 20 by 21. Now वो tan theta किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है. ठीक है. So from this data I can write it down that let perpendicular is equals to 20k and base is equals to 21k. Then I will draw a right angle triangle. फिर क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे in this way. Draw a right angle triangle and let this be the reference angle. ठीक है, reference angle. This is 90 degree. So tan theta is given 20 upon 21 means perpendicular is 20k and base is 21k. So इस reference angle के according अपना perpendicular ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है. मींस दिस इज 20k, this is 21k. Now what about this? So we have to find out this, means we have to find out h. ये अपना TA and this is B. So for finding out the hypotenuse we will use the Pythagoras theorem. And what does it say? What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is Pythagoras theorem is E square plus B square perpendicular का square plus base का square is equals to hypotenuse का square. What is perpendicular? Perpendicular is 20k. So 20k का whole square plus 21k का whole square is equals to h का square. ठीक है, 20 का square is 400k square, 21 का square 441k square is equals to h का square. दोनों को ऐड करिए आप, you will get here 1 plus 0 1, 4 plus 0 4 and 4 plus 4 8. So this is k का h का square 841 k square. So h की क्या वैल्यू हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 841 k square. तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? So this is 29 का स्क्वायर एंड k का होल स्क्वायर. यहाँ से h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 29k. आपको हाइपोटेनियस मिल गया, दैट इज दिस इज 29k. अपना हाइपोटेनियस आ गया. अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल में सारी साइड्स पता है. ठीक है, परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता लग गया और हाइपोटेनियस भी पता लग गया. नाउ वी कैन फाइंड आउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें देखो क्या क्या फाइंड करना है. साइन थीटा इज इन द एक्सप्रेशन.
cos theta is in expression, again sin theta and cos theta. So reference angle theta से sin theta क्या होगा? What is sin theta? Ratio होता है perpendicular का and hypotenuse का. So what is our perpendicular? Perpendicular is 20k and what is our hypotenuse? It is 29k. So it will give you 20 upon 29. ये आ गया sin theta. Cos theta भी निकाल लेते हैं इस तरीके से. वो रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनियस का. बेस कितना है अपना 21 के, हाइपोटेनियस कितना आया 29 के. आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 21 अपॉन 29. ठीक है, अपने को साइन थीटा का रेशियो भी मिल गया, कॉस थीटा का भी रेशियो मिल गया. उठा करके इस वैल्यू को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ओके ठीक, चलो sin theta की वैल्यू इज 20 upon 29, cos theta की वैल्यू 21 upon 29. Substituting the value in the LHS side. What is LHS? 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta. ठीक है, ये अपना LHS है. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो 1 minus sin theta, sin theta की क्या वैल्यू है? Sin theta is just 20 upon 29. And what about cos theta? Cos theta is 21 upon 29. 21 upon 29. ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस में sin theta means 20 upon 29 and plus cos theta means 21 upon 29. Now if you observe 1 के नीचे 1 है इसका मतलब, so LCM of 29 and 1 will be 29. ये आ गया अपना. यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21. ठीक है, नीचे सेम ऐसे ही 29 प्लस 20 प्लस 21 divided by 29. This 29 will get cancelled out this 29. Now I'm writing it in this side. Okay. अब ये देखो 29 minus 20, so 9 and 9 plus 21. 9 plus 21 is 30. Okay. 29 plus 20 plus 21. So 9 plus 1 10. ये 9 plus 1 10 और 0 0 रहेगा, 10 हो गया, 0 आया, कैरी 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7. ओके, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला आपको 3/7. सो LHS कितना आ गया अपना 3/7. व्हाट इज RHS? RHS इज आल्सो 3/7. हेंस प्रूव्ड. So this is the question number 11. ठीक है, and we approved it. The next question is, if sec theta is equals to 5/4, show that sin theta minus 2 cos theta divided by tan theta minus 2 cot theta minus cot theta is equals to 12/7. So we have to prove this particular expression. So now let us try. What is given? Given is sec theta is equals to 5/4. sec theta में given है और उसकी वैल्यू है 5/4. Ratio is 5/4. Now what is sec? Sec is the reciprocal of cos. Sec किसका reciprocal होता है? cos का. It means अगर मैं यहाँ से cos theta लिखना चाहूँ तो अपना cos theta क्या हो जाएगा? Cos theta will be equals to 4/5. Now cos theta किसका रेशियो होता है? It is the ratio of the base and the hypotenuse. So from this particular expression I can write down, let base is equals to 4k and hypotenuse is equals to 5k. अब मैं इनकी मदद से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और रेफरेंस एंगल थीटा मान करके बेस और हाइपोटेनियस को मेंशन कर दूंगा और फिर वहां से मैं परपेंडिकुलर फाइंड आउट करूंगा. उस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल के सभी साइड्स मिल जाएंगी. ठीक है, मींस परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस तीनों फाइंड आउट कर लेंगे. फिर जो भी हमें बोलेगा, जिस तरह का भी एक्सप्रेशन बोलेगा उसमें उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, जैसे आप देखिए तो LHS में आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, टेन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे और कॉट जस्ट उसका रिवर्स होता है. सिंपली उनकी वैल्यूज को प्लग इन कर लेंगे और फिर ये देखेंगे क्या हमारा LHS 12/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर 12/7 आ गया इट मीन्स आपका प्रूव्ड हो गया, अदरवाइज फिर आप इसको रीचेक करना, कहीं ना कोई मिस्टेक होगी. ठीक है, सो नाउ लेट अस प्रूव. सो नाउ लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल.
Okay. Now this is our right angle triangle, 90 degree at here. Let this be reference angle theta. तो इस रेफरेंस एंगल थीटा के हिसाब से ये अपना बेस हो जाएगा, ये अपना परपेंडिकुलर, and this is hypotenuse. So what is hypotenuse? It is 5k. What is base? It is 4k. So basically we have to find out perpendicular. We have to find out perpendicular. Okay. So for finding out perpendicular, we will use Pythagoras theorem. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी साइड हमें निकालनी होती है तो इन जनरल वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट e square plus b square is equals to hypotenuse का square. So what is perpendicular? That we have to find out. तो उसकी जगह p square रहने दीजिए. b कितना है? 4k. तो 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा. And what about h? h is 5k. So 5k का होल स्क्वायर. Okay. I hope you are comfortable. Now 4k का होल स्क्वायर will give you 16k का होल स्क्वायर. 5k का होल स्क्वायर will give you 25k का होल स्क्वायर. Okay. So from there p square will be equals to 25k square minus 16k square. ठीक है. सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल से हो गया. 25 minus 16 will give you 9k square. So p कितना आ जाएगा यहाँ से? अंडर रूट 9k स्क्वायर. जब खुद से हम स्क्वायर रूट लगाते हैं दोनों साइड, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो वैल्यू जनरली नेगेटिव एंड पॉजिटिव में आती है. बट यहाँ पे ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, मीन्स 3k. ओके. परपेंडिकुलर आ गया अपना 3k. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? What is that expression? Expression is sin theta minus 2 cos theta upon tan theta minus cot theta. अब ये है अपना. ठीक है. So what is LHS? LHS is here sin theta minus 2 cos theta divided by tan theta minus cot theta. ये अपना एक्सप्रेशन है. सब्स्टिट्यूट क्या करना रहेगा? साइन थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू. आई होप कि अभी तक आपको साइन थीटा की वैल्यू सारी वैल्यू हो गई होंगी. किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सामने आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर को देखो और हाइपोटेनियस को देखो विद रेफरेंस एंगल थीटा. तो परपेंडिकुलर इज 3k एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस 5k. k से k कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 3/5. अब डायरेक्ट प्लग इन करना सीखिए. 2 बाहर है आपको. ठीक है. cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. So what is base? 4k and what is hypotenuse? 5k. k से k cancel out हो जाएगा, so you will get 4/5. Okay. What is tan theta? Perpendicular upon base. Perpendicular कितना है? 3k and what is base? Base is here 4k. So 3k upon 4k. k से k cancel out, you will get 3/4. Now minus cot theta. Cot theta just इसका reciprocal होता है cot theta, इसका tan का. तो यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ जस्ट 4/3 हो जाएगा. ओके. सो वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. अब 3/5 माइनस 2 होल 4/5. ठीक है. तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. होल नहीं, ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 इंटू 4 विल बी 8/5. ठीक. ये कितना हो गया? ओपन करेंगे ब्रैकेट तो यू विल गेट 3/4 माइनस 4/3. अभी जस्ट ब्रैकेट ओपन किया. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व इट. Draw a line. Okay. Now let us solve this. 3/5 minus 8/5. डिनोमिनेटर सेम है तो 5 रहेगा इसका एलसीएम. ठीक है. 3 minus 8 and now this 4 and 3, तो एलसीएम will be 12. now 4 3 are 12, तो 3 3 are 9. 3 4 are 12, यहाँ पे मिलेगा 16. ठीक है. now this one divided by this one, so 3 minus 8 will give you minus 5/5. ठीक है. इसमें क्या मिलेगा आपको? 16 में से 5 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा. हाउ मच यू विल गेट हियर? 7. ओके. यू विल गेट 7. तो 7 माइनस में एंड नीचे क्या है? 12. ओके. सो सी हियर you are getting -1 and in denominator you are getting -7/12. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट. ये 12 यहाँ जाएगा. 12/7. so this is our RHS. ठीक है. और RHS क्या अपना? 12/7.
LHS भी इतना ही है, RHS भी इतना ही है, तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। The question number 17 is like this. Question number 17. What does it says? If cos theta is equals to 3 by 5, if cos theta is equals to 3 by 5, show that what we have to show, sin theta minus cot theta divided by 2 tan theta is equals to 3 by 116, 3 by 160। RHS की वैल्यू आपको 3 by 160 आ रही है। LHS को सॉल्व करके आपको देखना होगा कि क्या ये RHS के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अप्रोच अपना सेम रहेगा। ओके, तो नाउ वी विल सॉल्व solution. What is given to us? It is given that cos theta is equals to 3 by 5. This is given. Okay, इसकी मदद से what we can say that cos theta is equals to 3 by 5. Cos theta किसका रेशियो होता है? Base upon hypotenuse, means 3 by 5 it is given. So from there I can say that let base is equals to 3k and hypotenuse is equals to 5k. Okay, 5k. Then same step again, we will draw a right angle triangle. ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री हियर, लेट दिस बी अ रेफरेंस एंगल। ठीक है, ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा, और ये अपना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज गिवन 5k, बेस इज गिवन टू अस 3k। ओके, अब उसके बाद तो फ्रॉम देयर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, यहाँ से परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, b क्या है अपना, b है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और h का स्क्वायर, h कितना है अपना यहाँ पे 5k, तो 5k का होल स्क्वायर, p स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर विल गिव यू 9k का स्क्वायर, 9k का होगा स्क्वायर, 5k होल स्क्वायर 25k स्क्वायर, so p स्क्वायर इज इक्वल टू सेम अगेन यू विल गेट माइनस 9k स्क्वायर। ठीक है, सेम ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे, 25 माइनस 9 विल गिव यू 16k स्क्वायर, p की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 16k स्क्वायर एंड दिस विल गिव यू 4k। मीन्स अपना परपेंडिकुलर कितना आ गया 4k। ठीक है, परपेंडिकुलर इज 4k। अब परपेंडिकुलर हमें मिल गया 4k, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में हमें सभी साइड्स पता लग गई। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 tan थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 by 160 आनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व RHS, ये LHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, RHS तो गिवन है हमें, LHS sin theta is the ratio of perpendicular upon hypotenuse. So what is perpendicular? Perpendicular is 4k and what is hypotenuse? It is 5k. तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा and you will get 4 by 5 minus cot theta. तो cot theta किसका रिवर्स होता है? Just tan theta का होता है। tan theta is perpendicular upon base, तो ये base upon perpendicular हो जाएगा, base is 3k and perpendicular is 4k, तो 3 by 4 हो जाएगा। ओके, 2 tan theta is what? Perpendicular upon base, so perpendicular is 4 and base is 3। I hope it is clear। ठीक है, 4 by 5 minus 3 by 4, so LCM of 5 and 4 will be 20, 5 4 is 20, 4 into 4 16 minus 4 5 is 20, 5 into 3 15। okay, in denominator 4 2 is 8 by 3। okay, now see 16 minus 15 it will be 1 by 20 and this is 8 by 3। is it clear? 8 by 3 है, 30 नहीं है, 8 by 3, so this 3 into 1, 1 into 3 upon 8 into 2, this will give you 3 upon 160। आ गया अपना LHS की वैल्यू कितनी आई
3/116 और RHS भी आपका 3/160 है, ठीक है। तो सेम है, LHS is equals to RHS hence root. Okay, so we have solved this question also.